حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے دور میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو قید نہیں کیا گیا، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ خاتون حاملہ ہے۔ انگوٹھے سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو رزق پہنچا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بول نہیں سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی خود کی حفاظت کر سکتے ہیں، ایسے بتوں کی تم عبادت ہی کیوں کرتے ہو؟ ہوا یوں تھا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے اس نے منجنیق تیار کی تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی رہے گا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کہ آپ آگ میں صحیح سالم ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر اتنا سرور اور راحت حاصل ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کاش میری ساری زندگی اسی آگ میں گزر جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا۔ نمرود نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ جب بھی وہ مچھر اس کو تکلیف دیتا تو وہ نمرود اپنے ہی سر پر جوتے مارنے لگواتا تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے وطن سے ہوئے۔ تنگ دستی میں قناعت کرنے کی بدولت، کم رزق میں بھی اللہ کا شکر کرنے کی بدولت اس کا طلاق ہونے سے بچ گیا۔ دونوں نے بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے جاتے اور ابراہیم علیہ السلام ان سے دیوار اونچی کرتے جاتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر فوراً کہہ دیا کہ اے میرے والد، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے پورا کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کے ساتھ چھری چلائی، لیکن پھر بھی اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، وہ ملک الموت تھے۔ جلدی سے کھڑے ہو کر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی تدفین الخلیل شہر میں سارہ علیہ السلام کے قریب میں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دو پیغمبر بیٹوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کفن و دفن کا اہتمام کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے دور میں ہوئی۔ نمرود ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، مشرق سے مغرب تک اس کی سلطنت تھی۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے دادا کے دادا ہیں۔ یہ نمرود ایک بہت بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ 400 سال تک بابل شہر میں اس کی بادشاہت چلتی رہی۔ ایک مرتبہ اس نمرود نے ایک ستارہ دیکھا جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے اپنے پاس کاہنوں کو بلوایا۔ کاہن مطلب فیوچر بتانے والا۔ کاہنوں کو اپنے پاس بلوا کر اس نے اس ستارے کے بارے میں سوال کیا تو کاہنوں نے جواب دیا کہ اس سال ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تو اور تیری سلطنت تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اسی وقت اس جگہ کے سارے مردوں کو وہاں سے نکال دیا اور عورتوں کو وہیں پر رہنے دیا۔ جب بھی کسی عورت کا حمل نظر آتا تو وہ اس عورت کو قید کر لیتا تھا، پھر اگر اس عورت کو لڑکا ہوا تو اس لڑکے کو قتل کروا دیتا تھا۔ اتنے سخت انتظامات کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں آنا ہی تھا۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو قید نہیں کیا گیا، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ خاتون حاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حمل سے تو تھیں، لیکن آخر وقت تک ان کا حمل کسی کو نظر نہ آیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو ان کی والدہ جنگل میں چلی گئی اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ نے ان کو ایک غار میں چھپا کر رکھا۔ بار بار وہ اس غار میں جاتی تھی، بچے کی دیکھ بھال کر کے واپس آ جاتی تھی۔ جب بھی وہ اس غار میں داخل ہوتی تو دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے ہیں۔ انگوٹھے سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو رزق پہنچا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی پرورش پا رہے تھے کہ آپ تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک ہفتے میں 1 مہینے کے برابر اور 1 مہینے میں 1 سال کے برابر ابراہیم علیہ السلام بڑھتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرما دی تھی۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یعنی اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت پہلے سے ہی دے دی اور ہم اس سے باخبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو شرک سے روکتے تھے
اور بڑی جرأت کے ساتھ ان کے بتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات دکھا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آسمان پھٹ گئے اور آپ آسمانوں کی سب چیزیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی نظر عرش تک پہنچ گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ساتوں زمینیں کھول دی گئی اور زمینوں کے اندر کی چیزیں بھی ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی علانیہ اور چھپی ہوئی ساری چیزیں دکھا دی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کچھ نہیں چھپایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پس جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، ستارہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، پھر جب آپ نے سورج کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، پھر جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے قوم میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کا تم شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ ہر باطل سے جدا ہو کر اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ سب ستاروں، چاند، سورج کو دیکھ کر خدا کہنا، پھر ان کے ڈوبنے کے بعد ان کے خدا ہونے کا انکار کرنا، یہ سب ان کی قوم کو سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے نظریے کو باطل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی سوچ کے مطابق کہا کہ یہ ستارہ میرا خدا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا کہ نہیں، یہ ڈوبنے والا ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھ کر اپنی قوم کے نظریے کے حساب سے فرمایا کہ یہ میرا خدا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ میرا رب مجھے ہدایت نہ دیا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ رب کون ہے۔ اس کے بعد اپنی قوم کو ان کا نظریہ بتانے کے لیے سورج کو دیکھا، پھر ان کے نظریے کے مطابق کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہی ہمارا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تب آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جتنے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، میں تو اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ تم کو بھی ان سب کی عبادت چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سبھی ستارے اور چاند ایک مقررہ وقت پر طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں، تو جس کے حکم سے یہ سب ہوتا ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے چچا آزر کو بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا جس کو قرآن میں باپ سے تعبیر کیا گیا۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے والد تو تارخ تھے اور وہ مومن تھے۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں تھے بلکہ وہ تو آپ کا چچا تھا، اور بھی روایات سے یہ ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے۔ عرب میں چچا کو باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی طرح آج کے دور میں بھی چچا کو ابا کہا جاتا ہے، بڑے ابا، چھوٹے ابا، اس طرح۔ تو قرآن میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو باپ سے تعبیر کیا گیا۔ خیر جو بھی ہو، یہ سب مفسرین کی بحث ہے، اس میں ہم کو الجھنا نہیں چاہیے۔ بس یہ بات تو پکی ہے کہ آزر جو تھا وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ساتھ آزر کو بھی اسلام کی دعوت دی، ہر قسم کی دلیلیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، ان دلیلوں کے ذریعے آپ نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ سبھی دلائل کو سن کر مشرکین آپ سے حجتیں کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ تمہارے سارے معبود بے بس اور بے طاقت ہیں، نہ میں تمہاری فضول اور باطل باتوں میں آؤں گا، نہ تمہاری دھمکیوں سے ڈروں گا۔ جاؤ تم سے تمہارے باطل معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، اگر تمہارے اور ان کے قبضے میں میرا کوئی نقصان ہے تو جاؤ پہنچا دو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نقصان اور فائدہ سب اسی کی طرف سے ہے۔
तमाम चीज़ें उसी के इल्म में है, छोटी से छोटी चीज़ भी उससे पोशीदा नहीं है। अफसोस इतनी दलीलें सुनकर भी तुम्हारे दिल नसीहत हासिल नहीं करते। कई मरतबा नसीहत करने के बाद भी वो ना माने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि मैं तुम्हारे बुतों का कुछ इलाज करूंगा, तुम्हारे पीठ फेर कर जाने के बाद तुम्हारे बुतों के साथ चाल चलूंगा। उनकी शहर के बाहर एक ईदगाह थी और वो हर साल त्यौहार मनाने के लिए उस ईदगाह को जाते थे। तो जब वो ईद का दिन आया तो उससे एक दिन पहले आज़र ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम हमारे साथ ईदगाह चलो ताकि हमारी ईद देखकर तुम्हें हमारे दीन की अच्छाई मालूम हो जाए और हमारा दीन तुमको पसंद आ जाए। चुनांचे ईद के लिए जब वो जा रहे थे तो आज़र भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को साथ ले जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम गिर गए और कहा कि मैं बीमार हूँ, अब मैं इससे आगे नहीं आ सकता। आज़र ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहीं पर छोड़कर ईद मनाने के लिए चला गया। रास्ते से चलने वाले लोग आपसे पूछते जाते कि तुम क्यों नहीं चल रहे हो, तो आप जवाब देते कि मैं बीमार हूँ। जब आम लोग चले गए, अब बूढ़े और कमजोर लोग बाकी रह गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारे चले जाने के बाद आज मैं तुम्हारे बुतों की मरम्मत करूंगा। जब वो सारे लोग चले गए तो मैदान खाली पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में तशरीफ लाए। ये एक बहुत बड़ी इमारत थी। दरवाजे के सामने सबसे बड़ा बुत रखा हुआ था, उसके पहलू में एक छोटा बुत रखा हुआ था, उसके पहलू में एक और बुत रखा हुआ था, उसके पहलू में और एक बुत रखा हुआ था। इस तरह एक दूसरे के पहलू में कई बुत थे। हर साथ वाला बुत पहले वाले बुत से छोटा था। मुशरिकीन उन बुतों के सामने अजीब अजीब उम्दा किस्म के खाने रखे हुए थे। उनका मानना था कि उनके वापिस आने तक उनके ये बुत इन खानों में बरकत डाल देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उन खानों को देखा तो उन बुतों से कहा कि तुम्हें क्या हुआ, ये खाना क्यों नहीं खा रहे? बुतों ने कुछ नहीं कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब बुतों ने इसका भी जवाब ना दिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। एक कुल्हाड़ा लेकर हर बुत के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिर्फ बड़े बुत को आपने छोड़ दिया। फिर उस बड़े बुत के कंधे पर वो कुल्हाड़ा लटका दिया और वहां से चले गए। फिर जब लोग अपनी ईदगाह से वापस आए तो लोगों ने देखा कि उनके बुतों के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखकर लोगों ने कहा कि जिसने भी हमारे बुतों के साथ ऐसा किया है वो बहुत ही बड़ा जालिम है। उस वक्त जिन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना था कि मैं तुम्हारे बुतों को तोड़ दूंगा, उन लोगों को ख्याल आ गया और कहने लगे कि हमने उस नौजवान को जिसका नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कहते हुए सुना, वो हमारे बुतों की तौहीन कर रहा था, उसी ने हमारे बुतों का ये हाल किया होगा। मुशरिकीन ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों के रूबरू बुलाओ ताकि लोग उसकी बातों पर गवाही दें, फिर उसकी बात को भी सुने, फिर अपने बुतों को तोड़ने का बदला भी उनसे ले लें। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी यही चाहते थे कि तमाम लोगों का इज्तिमा हो और तमाम लोगों की तवज्जो उनकी तरफ हो। फिर ये खुलकर उन बुतों के बारे में इन लोगों के सामने बयान करें कि ना ये देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खुद की हिफाजत कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा ही हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब लाया गया, कौम जमा हुई तो मुशरिकीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि हमारे बुतों के साथ ऐसा सुलूक क्या तुमने किया? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब इस बड़े बुत ने किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि तुम मुझसे क्यों पूछते हो, अपने इन बुतों से ही पूछ लो कि इनकी ये हालत किसने की। ये बातें सुनकर मुशरिकीन खुद को ही मलामत करने लगे। आपस में वो कहने लगे कि हमने बड़ी गलती की है कि हमने अपने बुतों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन बुतों से पूछें, क्या आपको पता नहीं कि ये बात नहीं कर सकते? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बोल नहीं सकते, फायदा नहीं दे सकते और नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते और ना ही खुद की हिफाजत कर सकते हैं, ऐसे बुतों की तुम इबादत ही क्यों करते हो? उफ है तुम पर और तुम्हारे इन बुतों पर जिनकी तुम इबादत करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब से लाजवाब होकर वो कहने लगे कि इसके लिए कोई इमारत बनवाओ, फिर उसमें तेज आग भड़काकर उस इब्राहिम को उस आग में डाल दो। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बुरा करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। हुआ यूं था कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का फैसला किया। एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा, सब काफिर लकड़ियां जमा करने लगे। जहां से हो सके लकड़ियों का अंबार वो जमा करके लाते गए। यहां तक कि लकड़ियां जमा करते करते एक मुद्दत गुजर गई। ये काफिर इस लकड़ियां जमा करने के फेल को इतना बाबरकत समझने लगे कि अगर कोई औरत बीमार पड़ जाती तो वह मन्नत मान लेती थी कि अगर मेरी ये बीमारी दूर हुई तो मैं भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा जमा करूंगी। फिर उन्होंने सब लकड़ियों से वो गड्ढा भरकर उसमें आग लगा दी। आग जलना शुरू हुई, भड़कने लगी, इतनी कि अगर उसके ऊपर से परिंदा जाता तो जल जाता था। उस आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। रूए जमीन पर इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी गई। अब इस गड्ढे के करीब जाना भी मुश्किल हो गया, तो वो लोग सोचने लगे कि इस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालें कैसे। उनमें से एक हिजन नामी एक शख्स था। उसने मशवरा दिया कि उनको मंजनीक के जरिए आग में डाला जाए। चुनांचे उसी शख्स ने मंजनीक तैयार की।
اور یہ ہیزن ہی دنیا کا پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے منجنیق تیار کی، اور اسی کی سزا آج بھی وہ بھگت رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے اس نے منجنیق تیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی رہے گا۔ اب کافر لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر اس منجنیق میں بٹھانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ذات پاک ہے، تمام حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، سارے ملک کا تو اکیلا ہی مالک ہے، کوئی بھی تیرا شریک نہیں۔ آپ کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے پڑلے میں رکھ کر آگ میں پھینکا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان حاضر ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کی طرف سے ہے تو نہیں، اور اگر مدد اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے ضرورت ہے۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دعا کر رہی تھی، تمام جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چپکلی ہی تھی جو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تو ایک خاص نیزہ رکھا ہوا تھا چپکلیوں کو مارنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ چپکلیوں کو مارو، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ اس آگ کو پھونک مار کر بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چپکلی کے علاوہ تمام جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بارش برسانے والا فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں، لیکن اللہ کا حکم سیدھا آگ کی طرف ہوا۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ سن کر صرف یہ ہی نہیں، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس دن کوئی بھی کسی بھی آگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اگر اللہ نے صرف ٹھنڈی ہونے کا حکم فرماتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی تھی، لیکن اللہ کے حکم وسلام علی ابراہیم کی وجہ سے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو گئی۔ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام گئے تو آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں۔ جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں اور ابراہیم علیہ السلام کی جوتیاں تو جل گئیں، لیکن جب حکم ہوا کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے کو بھی نہیں جلا سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک وہاں پر سایہ تھا۔ پوری آگ ٹھنڈی تھی اور سلامتی والی تھی۔ سرسبز باغ گلے گلزار بنی ہوئی تھی۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کہ آپ آگ میں صحیح سالم ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی اس آگ کے اندر نہیں آ سکتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام باہر نکل کر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر اتنا سرور اور راحت حاصل ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کاش میری ساری زندگی اسی آگ میں گزر جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے اس گلزار میں دیکھا تو انہوں نے پکارا اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے بھی نہ چڑھ دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا جی اماں آئیے۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئیں، وہ بھی آگ سے سلامت رہیں۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر ان کو گلے سے لگایا، بوسہ دیا، پھر وہ واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جو گلزار بن گئی تھی 40 یا 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ میں جتنے دن میں نے گزارے ان دنوں سے اچھی زندگی میں نے نہیں گزاری۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل کر صحیح سالم واپس آئے تو آپ کے والد نے آپ کی پیشانی سے پسینہ پہنچتے ہوئے دیکھ کر فرمایا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارا رب کیا ہی اچھا رب ہے۔ تو الغرض کفار اور مشرکین نے اللہ کے نبی کو نیچا کرنا چاہا، اللہ نے انہی کو نیچا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب بھی قحط سالی ہوتی تو لوگ اس وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس جا کر غلہ لے کر آتے تھے۔ یہ نمرود بابل شہر کا بادشاہ تھا، دنیا کا سب سے پہلا ظالم بادشاہ یہی تھا۔ 400 سال تک اس کی حکومت چلتی رہی۔
लंबे अरसे तक हुकूमत चलने की वजह से उसकी सरकशी इतनी बढ़ गई कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। एक मरतबा मुल्क में क़हत साली छा गई। नमरूद के पास गल्ला था और लोग गल्ला लेने के लिए नमरूद के पास गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उस वक्त गल्ला लेने के लिए गए। नमरूद सब लोगों के पास से गुजरा और सबसे पूछने लगा कि तुम्हारा रब कौन है। लोगों ने कहा कि आप हैं। यही सवाल जब उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। उसने दो लोगों को बुलवाया, उनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया। वो ये समझ रहा था कि उसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी बख्श दी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको ये समझाना चाहते थे कि हमारा खुदा नई जिंदगी देता है, जो अभी दुनिया में है भी नहीं उसको दुनिया में नया पैदा करके भेजता है। लेकिन नमरूद की घटिया अक्ल उसको समझ नहीं पाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही जुमला कहा कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसको मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके पास से अनाज लिए बगैर वापस आ गए। जब आप अपने घर के करीब पहुंचे, आपने सोचा कि रेत के सुर्ख टीले से कुछ ले लूं। 2 थैलों में आपने रेत भरी और घर पहुंच गए। सवारी उतार दी। ज्यादा थकान की वजह से आप टेक लगाकर सो गए। जब आपकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम थैलों के पास गई तो उन्होंने देखा कि दोनों थैलों में उम्दा उम्दा अनाज रखा हुआ है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने वो खाना लेकर पकाया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो आपने देखा कि खाना तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी से पूछा कि ये खाना कहाँ से आया। बीवी ने कहा कि ये वही खाना है जो आपने थैलों में लाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये रिज़्क़ उनको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को एक अल्लाह की तरफ दावत दी, लेकिन वो ना माना। नमरूद ने कसम खाई कि जरूर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा को तलाश करूंगा। चुनांचे उसने परिंदे मंगवाए ताकि उड़कर खुदा तक पहुंच सके और आसमान पर कब्जा कर सके। उसने बड़े परिंदों को पाला। जब वो पलकर और बड़े हो गए, जवानी को पहुंचे, ताकत और कुव्वत वाले हो गए तो एक चौकी के पाए से एक को बांधा और दूसरे पाए से दूसरे को बांधकर खुद अपने साथी के साथ उस चौकी पर बैठ गया। कई दिन तक उन परिंदों को कुछ न खिलाया, जिसकी वजह से वो बहुत भूखे हो गए थे। उसने चौकी पर बैठकर एक लकड़ी के सिरे पर गोश्त का टुकड़ा लगाकर उसे ऊपर उठाया। भूखे परिंदे खाने के लिए ऊपर उड़े, अपने जोर से चौकी को भी साथ लेकर उड़ गए। जब ये बहुत ज्यादा ऊपर उड़े, इतनी ऊपर कि पहाड़ भी छोटे छोटे कंकर नजर आने लगे। फिर उसने देखा कि समंदर ने खुश्की को घेर रखा है। फिर इतना बुलंद हुआ कि वहां पर अंधेरा छा गया। उस जगह उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो डर गया और वापस नीचे आने के लिए उसने गोश्त को नीचे फेंका, जो तड़क कर पहाड़ों पर गिरा। जब पहाड़ों ने यह मंजर देखा तो वो घबरा गए और करीब था कि वो घबराकर अपनी जगह से हिल जाते। अल्लाह ने फरमाया, वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन काना मकरुहुम लितज़ूला मिनहुल जिबाल। यानी उन्होंने अपनी सारी चालें चलकर देखी, मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास है। अगरचे कि उनकी चालें ऐसी गजब की थी कि पहाड़ भी उनसे टल जाए। अलग अलग चाल चलने के बाद भी वो नमरूद खुदा तक नहीं पहुंच सका। अल्लाह ने उसकी हर चाल को नाकाम बना दिया। अल्लाह ने नमरूद की तरफ एक फरिश्ते को भी भेजा। फरिश्ते ने नमरूद से कहा कि तुम एक अल्लाह पर ईमान लाओ तो ही तुम्हारी बादशाहत सलामत रहेगी, वरना नहीं। नमरूद ने कहा कि मेरे अलावा भी कोई खुदा है। ये कहते हुए उसने इनकार कर दिया। दूसरी मर्तबा फरिश्ते ने दावत दी, फिर भी उसने इनकार कर दिया। तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने दावत दी, लेकिन उसने तीसरी मर्तबा भी हठधर्मी के साथ उसका इनकार कर दिया। फिर कहा, मैं अपना लश्कर इकट्ठा करता हूं और तुम भी अपना लश्कर इकट्ठा कर लो, फिर देखते हैं कि फतह किसकी होती है। 3 दिन में उसने अपनी फौज जमा कर ली। अल्लाह ने भी मच्छरों का एक लश्कर रवाना फरमाया ताकि अल्लाह अपनी कुदरत से उनको दिखाए कि एक खुदाई का दावा करने वाले का इंसानी लश्कर जो ताकतवर है, मच्छर जैसी कमजोर तरीन मखलूक के सामने कैसे ज़ेर हो जाता है। अब ये मच्छरों का लश्कर ये आफताब की रोशनी में दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये मच्छर उस नमरूद की सारी फौज का खून चूस चूस कर, गोश्त चाट चाट कर खा गए और सिर्फ हड्डियों को बाकी रहने दिया। नमरूद को उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि अल्लाह उसको सारी जिंदगी अज़ाब देना चाहता था। इसलिए सिर्फ एक मच्छर उस नमरूद की नाक में घुस गया। वो मच्छर उसके सर में 400 साल तक रहा। उसकी बादशाहत भी 400 साल तक रही, तो वो मच्छर भी उसकी सारी बादशाहत की मुद्दत तक उसके सर में रहा। जब भी वो मच्छर उसको सर में तकलीफ देता तो वो नमरूद अपने ही सर पर जूते मारने लगवाता था। जो जितने ज्यादा उसके सर पर जूते मारता वो उतना ही ज्यादा उसको अच्छा लगता था। मच्छर की तकलीफ से वो अपने सर को सलाखों से भी पिटवाता था, हत्ता कि उसी अजाब में नमरूद हलाक हो गया। तो अल्लाह की कमजोर तरीन मखलूक ने खुदाई का दावा करने वाले को जलील करते हुए हलाक कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
अपने बाप आजर से कहा कि एक अल्लाह पर ईमान लाइए। दरअसल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा था जिसको कुरान में बाप से ताबीर किया गया। इसमें मुफस्सिरीन इकराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, हमें इन इख्तिलाफात में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी बात पक्की है कि जो आजर था वो काफिर और मुशरिक था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आजर से कहा कि आप ऐसी चीज़ की पूजा क्यों करते हो जो ना सुन सकती है और ना देख सकती है और ना आपके कुछ काम आ सकती है। जान लो कि मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला है। आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। आप शैतान की परस्तिश ना कीजिए, बेशक शैतान खुदा का नाफरमान है। मुझे डर लगता है कि आपको खुदा का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथी बन जाएंगे। ये सब सुनने के बाद आजर ने कहा कि ऐ इब्राहिम, क्या तू हमारे माबूदों से बेजार है? सुन, अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, यानी पत्थर से मार दूंगा। अब तू मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम अलैक कहा और फरमाया कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है। और मैं आप लोगों से और जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो उन सबसे अलाहिदा होता हूँ, और मैं अपने परवरदिगार को ही पुकारता हूँ। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। अपने वादे के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजर के लिए बख्शिश तलब करते रहे, लेकिन जब उनको पता चला कि वो अल्लाह का दुश्मन है तब आपने आजर से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने भी ईमान लाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी कौम और अपने वतन को छोड़कर हिजरत की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ लूत अलैहिस्सलाम भी थे। ये भी कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तारुख अपने बेटे इब्राहिम और सारा अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को लेकर मकाम हर्रान की तरफ गए और वहीं पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तारुख की वफात हुई। एक कौल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सरजमीन शाम की तरफ हिजरत की, एक कौल के मुताबिक हर्रान की तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और एक कौल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ हिजरत की। दौरान सफर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसी बस्ती से हुआ जिसमें कोई जालिम बादशाह रहता था। उस बादशाह को किसी ने बता दिया कि इब्राहिम एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ हमारे इलाके में आया हुआ है। बादशाह ने यह सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा कि तेरे साथ कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बहन है। हालांकि वो आपकी बीवी थी। आपने बहन इसलिए कहा क्योंकि आपको खौफ था कि उनका शौहर होने की वजह से वो आपका कत्ल न करा दे, क्योंकि हजरत सारा अलैहिस्सलाम इतनी खूबसूरत थी कि आपका हुस्न हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता था। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सारा अलैहिस्सलाम ही सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी बहन है। तो बादशाह ने कहा कि उन्हें इधर भेजो ताकि मैं उन्हें देखूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को वहां पर रवाना फरमा दिया और साथ में ये भी फरमाया कि वहां जाकर मुझे झूठा ना करना, क्योंकि मैंने बादशाह से कहा है कि आप मेरी बहन हैं और रूए जमीन पर इस वक्त कोई भी मोमिन नहीं है, मतलब कोई भी शौहर और बीवी दोनों के दोनों एक साथ कोई भी मोमिन नहीं है तुम्हारे और मेरे अलावा, तो तुम मोमिन होने के लिहाज से मेरी बहन हो। सारा अलैहिस्सलाम वहां से गई, बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह बुरे इरादे के साथ खड़ा हुआ। तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम वुज़ू करके नमाज पढ़ने लग गई और उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और मैं पाक दामन हूँ, मैंने अपने दामन पर कभी धब्बा आने ना दिया। ऐ अल्लाह, इस काफिर को मुझसे दूर रख और उसके हराम मकसद को नाकाम बना दे। जब बादशाह बुरी नीयत के साथ आगे बढ़ा तो वो वहीं पर धंस गया, जकड़ गया। वो हाथ पांव नहीं हिला पा रहा था और अजीब खराटों की आवाज निकाल रहा था। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने यह देखकर अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर यह मर गया तो लोग कहेंगे कि मैंने ही इसको कत्ल किया है। ऐ अल्लाह, तू इसको आजाद कर दे। तो वो आजाद हो गया, लेकिन दोबारा वो बुरी नीयत के साथ आगे बढ़ा तो फिर से सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। वो फिर से जकड़ गया और धंसना शुरू हो गया। वो पांव तक धंस गया था। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो सारा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, वो फिर से बच गया, लेकिन फिर उसने ऐसा ही किया, फिर जकड़ गया। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर आजाद हो गया। 3-4 मरतबा ऐसा ही हुआ। आखिरकार वो सारा अलैहिस्सलाम के करीब ही नहीं हो सका। तंग आने के बाद वो बोल उठा कि तुम मेरे पास कोई शैतान ही लाए हो, इसे वापस ले जाओ और इसको एक बांदी दे दो। तो उस बादशाह के हुक्म से हाजरा अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम को दी गई। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, ये तोहफे में मिली थी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को ताकि आप सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत करें। इसलिए इस बादशाह ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को सारा अलैहिस्सलाम के हवाले किया था। तो सारा अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर वापस हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हो चुके थे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम के जाने के साथ ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू कर दी थी
اور آپ التجا کر رہے تھے, اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے گھر والوں سے اس کو دفع کر اور میرے گھر والوں پر ہونے والے عذاب کو ٹال دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام دونوں کے بیچ میں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیا تھا. جب سے سارہ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئی تب سے لے کر واپس آنے تک سارہ علیہ السلام کیسے پہنچی, نماز پڑھی, کافر سے کس طرح بچی, یہ سب براہ راست ابراہیم علیہ السلام دیکھ پا رہے تھے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب دکھا رہا تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن رہے. واپس آ کر سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر دی اور کہا کہ یہ باندی جس کا نام ہاجرہ ہے مجھے خدمت کے لیے دی گئی ہے. اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام مصر چھوڑ کر سرزمین مقدس کی طرف تشریف لائے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ مال تھا, غلام تھے, مویشی تھے, جانور تھے, اور باندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی تھی. لوط علیہ السلام بھی تھے. پھر لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے سدوم شہر میں آباد ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں نیک اولاد کی دعا کرتے رہتے تھے. 20 سال گزر گئے سرزمین مقدس میں قیام کیے ہوئے, پھر بھی آپ کو اولاد نہیں ہوئی. تو حضرت سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں, شاید کہ اللہ ان کو اولاد عطا کر دے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کرنے کے بعد جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئی تو لوگوں نے باتیں شروع کر دیں کہ پہلی بیوی کو اولاد نہیں لیکن دوسری بیوی اب ماں بننے والی. اس قسم کی باتیں سن کر حضرت سارہ علیہ السلام کو تھوڑی سی غیرت آئی. فطری طور پر سارہ علیہ السلام نے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ وہ ہاجرہ علیہ السلام کے 3 عضو کاٹ دیں گی, جسم کے 3 حصے کاٹ دیں گی. بعض کتابوں کے مطابق حمل ٹھہرنے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کی صحیح طرح سے خدمت نہ کر سکیں, جس کی وجہ سے حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور قسم کھا لی کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے 3 اعضاء کاٹ دیں گی. یہ بات سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام ڈر گئیں اور وہاں سے بھاگ کر ایک چشمے کے پاس جا کر ٹھہر گئیں. تب ایک فرشتہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا, عرض کیا کہ آپ خوف نہ کریں, جو لڑکا آپ کے حمل میں آیا ہے اس بچے سے اللہ آپ کو بہت بھلائی عطا کرے گا. اس لڑکے کا نام اسماعیل رکھنا. وہ لوگوں میں تنہا ہوگا, اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے. وہ اپنے تمام بھائیوں کے ملکوں کا مالک ہوگا. فرشتے نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور سارہ علیہ السلام کی خدمت کریں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے واپس آ گئی. ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ علیہ السلام سے ناراضگی کو ختم کر لیں. تو سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ناراضگی ختم کر کے آپ ان سے راضی ہو گئی. لیکن کیونکہ حضرت سارہ علیہ السلام نے قسم کھائی تھی اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا کہ تم ہاجرہ علیہ السلام کے ناک کان میں سوراخ کر دو اور ختنہ کر دو. ایسا کر کے تم اپنی قسم بھی پوری کر لو گی اور ہاجرہ علیہ السلام اتنی تکلیف سے بھی بچ جائیں گی. سارہ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. ہاجرہ علیہ السلام کے ناک اور کان میں سوراخ کیے اور اپنی قسم پوری کر لی. اس کے بعد ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے کان کے سوراخ میں بالیاں ڈالی جس کے سبب وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی. تب سے خواتین میں یہ عمل جاری ہو گیا. ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھ کر خواتین نے اپنے اپنے ناک کان چھید کر بالیاں لگوانے لگی اور آج بھی خواتین ایسا ہی کرتی ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہی سب سے پہلی خاتون ہیں جن کے ناک اور کان کو چھید کیا گیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کمر بند باندھا اور اپنے دامن کو دراز کیا تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور سارہ علیہ السلام کو ان کی موجودگی کا علم نہ ہو. ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی. 99 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. ایک روایت کے مطابق 86 سال کے تھے ابراہیم علیہ السلام اور کچھ روایات میں الگ الگ عمر بتائی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. بہرحال بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. پہلے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے ہیں. اسحاق علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے بطن سے ہوئے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ہاجرہ علیہ السلام کو کسی اور جگہ پر لے کر جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر شہر مکہ چلے گئے. ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ان کا شیرخوار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. شہر مکہ میں آ کر مقام زمزم کے پاس ایک درخت تھا. اس درخت کے پاس لا کر ابراہیم علیہ السلام نے ماں اور بیٹے کو چھوڑ دیا. وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی, نہ ہی وہاں پر کوئی انسان تھا, نہ کوئی کھیتی باڑی تھی, پانی تک وہاں پر موجود نہیں تھا. ایسے علاقے میں لا کر ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس ایک کھجور کا تھیلا اور ایک پانی کا مشکیزہ رکھ کر وہاں سے واپس ہو رہے تھے. تو ہاجرہ علیہ السلام نے پیچھے آ کر عرض کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس بیابان میں جہاں زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے,
ایسی جگہ پر ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حاجرہ علیہ السلام اصرار و اضطراب کے ساتھ بار بار پوچھنے لگیں، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب جواب دیا کہ ہاں، تو حاجرہ علیہ السلام جب مطمئن ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حاجرہ علیہ السلام اپنی جگہ واپس آ گئی اور ابراہیم علیہ السلام بھی واپس مڑ کر آ رہے تھے۔ تھوڑی دور گھاٹی کے پاس پہنچ کر جہاں بیٹا اور ماں ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنی دور ہو کر اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر کے ہاتھ اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، یعنی اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو اس غیر ذی زرع وادی میں، مطلب جہاں پر کھیتی نہیں ہے، اس وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا کر بسایا ہوں۔ ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ دعا کر کے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب اس علاقے میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام صرف دونوں ہی ماں بیٹے تھے، ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کھانے کے لیے صرف ایک تھیلا کھجور تھا اور پینے کے لیے ایک مشکیزہ پانی تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بچے کو دودھ پلاتی اور اپنے پاس موجود پانی بھی پیتی رہتی، یہاں تک کہ وہ سارا پانی ختم ہو گیا اور حاجرہ علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے تھے۔ جب حاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیاس سے بلکتے ہوئے دیکھا تو زیادہ دیر تک یہ حالت ماں سے نہیں دیکھی جا سکی۔ حاجرہ علیہ السلام اٹھ کر قریب کی ایک صفا پہاڑی پر چڑھ گئی اور آس پاس کسی کو تلاش کرنے لگ گئی کہ شاید کوئی نظر آ جائے یا پانی وغیرہ مل جائے، لیکن کچھ نہ ملا۔ اسی بے چینی کے عالم میں آپ واپس اتریں۔ وادی کے بیچ میں پہنچ کر اپنی قمیص کا کنارہ پکڑ کر پھر سے پریشانی کے عالم میں دوڑنے لگی اور وادی پار کر کے مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی۔ مروہ پہاڑی پر سے بھی دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے یا پانی وغیرہ مل جائے، لیکن یہاں بھی کوئی پانی نہ ملا۔ حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ سے صفا ہوتی ہوئی اپنی مامتا اور دل کی طرف کے ساتھ بے چینی کے ساتھ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگا دیے۔ آخری مرتبہ جب حاجرہ علیہ السلام مروہ کی پہاڑی پر چڑھی تو وہ ایک آواز کو سنی اور اپنے آپ سے کہی کہ رک جا، شاید کوئی فریاد رسی کے لیے یہاں پر پہنچ گیا ہے۔ پھر مقام زمزم کی طرف دیکھا تو وہاں پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنی ایڑی سے زمین کو کوریدا یا اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تفسیر طبری میں ایک روایت ہے، اس روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے بلک رہے تھے اور اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حاجرہ علیہ السلام بے چین ہوئی، صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ سعی کی۔ جب آپ نے کچھ نہ دیکھا، مروہ سے اتر کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی سے زمین کو کورید ہی رہے تھے کہ وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ پانی نکل کر بہتا جا رہا تھا تو حاجرہ علیہ السلام ایک حوض کی صورت میں اس کو گھیرنے لگی، پھر بھی وہ ابل رہا تھا تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا زمزم، مطلب رک جا رک جا۔ یہ کہتے ہوئے حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو چلو میں بھر کر اس پانی کو اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی سے کہا تھا زمزم، یعنی رک جا رک جا، تب سے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ اگر حاجرہ علیہ السلام اس کو رکنے کے لیے نہ کہتی تو زمزم وہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا تھا، میٹھا چشمہ۔ حاجرہ علیہ السلام نے وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ اس جگہ پر کھڑے ہوئے فرشتے نے حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس جگہ پر خوف مت کیجیے، بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کے والد تعمیر کریں گے۔ اللہ اپنے گھر والوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارتی رہیں۔ ایک مرتبہ اس علاقے کے پاس قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ کچھ دور پر وہ قافلہ قیام کیا، وہاں سے انہوں نے ایک منڈلاتا ہوا پرندہ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں۔ وہ آ کر دیکھے تو واقعی میں پانی تھا۔ انہوں نے واپس آ کر قبیلے والوں کو خبر دی تو سب زمزم کی طرف آ گئے۔ وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام زمزم کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ قبیلے والوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہم اس علاقے میں رہ سکتے ہیں؟ حاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور کہا کہ اس پانی پر تمہاری کوئی ملکیت کا حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہے۔ جرہم قبیلے کے لوگ یہاں ٹھہر گئے اور اپنے گھر والوں کو پیغام بھیج کر انہوں نے ان کو بھی بلا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو گئی، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو گئے، سب لوگ مل جل کر رہنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور قبیلہ جرہم سے ہی اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی
और इस्माइल अलैहिस्सलाम ही वो सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने फसीह अरबी बोली, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ही नौजवानों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और वजाहत वाले थे। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आइन बुलूगत को पहुंचे तो बनी जुरहुम कबीले के लोग अपनी एक लड़की से उनकी शादी कर दी। इसी अरसे में हज़रत हाजिर अलैहिस्सलाम अजीम कुर्बानियाँ देते देते वफात पा गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद एक मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से पूछा कि कहाँ हैं, तो बहू ने जवाब दिया कि हमारे लिए रिस्क की तलाश में गए। अपनी बहू से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रहन सहन के बारे में पूछा तो शिकवा शिकायत करने लगी, कहने लगी कि हम बड़ी तंगी और सख्ती में मुब्तला हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम्हारे शौहर वापस आ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कह देना और उनसे कहना कि वो अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो उन्होंने कुछ खुशबू महसूस की। अपनी बीवी से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई आए थे। बीवी ने कहा हाँ, एक बुजुर्ग आए थे। उन्होंने आपके बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। उन्होंने हमारी जिंदगी के बारे में पूछा तो मैंने कह दिया कि सख्त मशक्कत के साथ गुजर रही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या उस बुजुर्ग ने कोई नसीहत की। बीवी ने कहा हाँ, उन्होंने हुक्म दिया कि मैं उनकी तरफ से आपको सलाम कहूँ, और वो आपको ये भी कह रहे थे कि आप अपने दरवाजे की चौखट बदल लो। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो मेरे वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। चौखट बदल दो से उनका मतलब ये था कि मैं तुम्हें अपने से जुदा कर दूं, लिहाजा तुम अपने घर वालों के पास चली जाओ। ये कहकर उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, क्योंकि उस बीवी ने अपने ससुर के सामने शिकवा किया था, जिंदगी तंगी से गुजरने की शिकायत की थी, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की थी, इसलिए उस चौखट को बदल देना पड़ा। ये एक इबरत है उन लड़कियों के लिए जो आजकल शौहर के गरीब होने का शिकवा करती हैं, तंगदस्ती में शौहर का साथ छोड़ देती हैं, कम रिस्क मिलने पर अल्लाह की नाशुक्री करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगरचे के कम रिस्क मिले, जिंदगी तंगी से गुजरे, हर हाल में कनाअत करना चाहिए। शौहर की जिम्मेदारी आपको खिलाना है, ज्यादा और उम्दा खिलाना नहीं। शौहर की जिम्मेदारी आपको कपड़े पहनाना है, महंगे लिबास और जेवरात नहीं। शौहर की जिम्मेदारी आपको छत का साया देना है, अलग घर दिलाना नहीं। इनमें से कोई काम अगर कोई शौहर उससे बेहतर कर दे तो आप उससे फायदा उठाओ, और अगर कोशिश के बावजूद अगर कोई काम ना कर सके तब भी तुम उसका साथ दो। इस तरह तलाक के सिलसिलों को खत्म किया जा सकता है। अगर शौहर के घर में तंगी हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इसका फल कैसा होता है ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के अगले वाक़ये में देखिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक देने के बाद जुरहुम कबीले की ही दूसरी लड़की से शादी कर ली। फिर कुछ अरसा गुजरा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए तशरीफ लाए। इस दफा भी इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से पूछा कि इस्माइल कहाँ है। बहू ने जवाब दिया कि रिस्क की तलाश में निकले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके रहन सहन के बारे में पूछा तो बहू ने अर्ज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैर और आफियत के साथ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारा खाना क्या होता है। कहा गोश्त। तुम्हारा पीना क्या होता है। कहा पानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। जब से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की तब से मक्के में गोश्त और पानी कसरत के साथ पाया जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त कोई बर्तन नहीं था। अगर होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बर्तन के हक में भी दुआ करते और उसमें भी फरावानी हो जाती थी। दुआ करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस नेक सीरत बहू को कहा कि जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उनको मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से उन्हें हुक्म देना कि अपने दरवाजे की चौखट बरकरार रखे। इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुशबू से पहचान लिया कि यहाँ पर कोई आए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ कौन आए थे। बीवी ने अर्ज किया कि एक अच्छी सूरत वाले और अच्छी सीरत वाले बुजुर्ग आए थे। बहू ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ की। बीवी ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि उस बुजुर्ग ने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मैंने कहा कि खाने का इंतजाम करने के लिए गए हैं। उन्होंने हमारी ज़िंदगी के बारे में पूछा कि कैसी गुजर रही है, तो मैंने कहा कि खैर के साथ गुजर रही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या वो बुजुर्ग आपको कुछ नसीहत किए हैं। बीवी ने कहा हाँ, वो आपको सलाम कह रहे थे और उन्होंने आपको हुक्म दिया कि आप अपने दरवाजे की चौखट को बरकरार रखना। ये सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बुजुर्ग मेरे वालिद मोहतरम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनके हुक्म का मतलब ये था कि मैं तुमको अपने साथ ही रखूं और अपने से दूर ना करूं। तंगदस्ती में कनाअत करने की बदौलत, कम रिस्क में भी अल्लाह का शुक्र करने की बदौलत उसका तलाक होने से बच गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत दुआएं दी। कुछ अरसे बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर से तशरीफ लाए।
इस बार आपकी मुलाकात इस्माइल अलैहिस्सलाम से हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के पास एक दरख्त के पास बैठे अपने तीर को ठीक कर रहे थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद मुकर्रम को देखा तो फौरन खड़े हो गए, बड़े अदब के साथ मुसाफहा और मुआनका किया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि ऐ इस्माइल, अल्लाह ने मुझे एक हुक्म फरमाया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब की तरफ से आपको जो हुक्म मिला है उसको पूरा कीजिए। वालिद मुकर्रम ने फरमाया, इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अर्ज किया, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इर्द गिर्द के एक उभरे हुए टीले की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाह ने मुझे यहाँ एक घर बनाने का हुक्म दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं भी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। दोनों ने बैतुल्लाह की दीवारों को ऊंचा किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाला कर देते जाते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे दीवार ऊंची करते जाते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद तक दीवार ऊंची कर ली, तब आपने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ कोई अच्छा सा पत्थर ढूंढ कर लाओ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जाकर एक पत्थर लेकर आए तो देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक सफेद चमकदार पत्थर पहले ही से लगा चुके हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये पत्थर कहाँ से आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लाया है। ये बहुत सफेद और चमकदार याकूत था जिसको आज हजर अस्वद के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये जन्नत का एक याकूत था। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से उतारा था तो आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे थे। उस वक्त उनका कद जमीन से आसमान तक था। जमीन से वो अपने लंबे कद की वजह से फरिश्तों की तस्बीह और दुआ सुन सकते थे। फिर जब आपका कद कम हो गया तो वो आवाज़ें आप तक नहीं पहुंच रही थी। आदम अलैहिस्सलाम घबराने लगे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि आप मक्के में जाओ। आदम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा एक घर बनाओ और अल्लाह ने जन्नत का एक याकूत उतारा। आदम अलैहिस्सलाम उस घर का तवाफ करते थे। वो याकूत भी वहीं पर था। जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान आया तब अल्लाह ने उस याकूत को दोबारा उठा लिया। एक और रिवायत के मुताबिक वो याकूत जबल अबू उबैस पर रखा गया था तूफान नूह के बाद। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर कर रहे थे उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसको दोबारा वहां पर लाया था। और एक रिवायत के मुताबिक बैतुल्लाह और हजर अस्वद दोनों को अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा और आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए अपना एक घर उतारा है, तुम इसका तवाफ करो जैसा कि आपने अर्श के इर्द गिर्द तवाफ होता देखा है। फिर तूफान नूह के वक्त दोनों को इकट्ठा उठा लिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तामीर काबा के वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर को दोबारा वापस लाया। मुख्तलिफ रिवायत में हजर अस्वद के बारे में बयान किया गया है। ये बात तो पक्की है कि हजर अस्वद जन्नत का एक पत्थर है, याकूत है, जो इतना चमकदार और रोशन था कि जिससे मशरिक और मगरिब रोशन हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी चमक को कम कर दिया। सिर्फ यही नहीं, मकाम इब्राहिम भी जन्नत का एक याकूत है, ये भी इतना ही चमकदार था। दोनों की रोशनी को अल्लाह ताला ने कम कर दिया। फिर भी ये हजर अस्वद दूध से भी ज्यादा सफेद था। लोग इसको मस करते गए, चूमते गए। ये लोगों के गुनाहों को अपने अंदर जज्ब करता गया। बनी आदम के गुनाहों को जज्ब करते करते उसकी सफेदी भी खत्म हो गई, इसलिए उसको हजर अस्वद कहा जाता है, ब्लैक स्टोन। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को भी लगा दिया। फिर जब दीवार बुलंद होकर सर से ऊंची होने लगी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मकाम इब्राहिम पर चढ़कर काबे की दीवारों को बुलंद किया। ये मकाम इब्राहिम ये भी एक जन्नत का एक याकूत है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर चढ़कर काबे की तामीर फरमाई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात इस पत्थर पर जम गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद करते हुए दुआ कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, यानी ऐ हमारे परवरदिगार हमसे इस खिदमत को कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई जगहों पर आजमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाना, सारा अलैहिस्सलाम का इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुदा होना, बुढ़ापे तक औलाद का ना होना, फिर औलाद होने के बाद उस दूध पीते बेटे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ देना, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें थी। हर आजमाइश को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा कर दिखाया और अल्लाह ताला भी उनको हर आजमाइश पर इनाम भी करता रहा। एक भारी आजमाइश अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रखी। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी दे दो, अपने बेटे को मेरे हुक्म से ज़बाह कर दो। वाक़या कुछ इस तरह है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के कामों में हाथ बटाने के काबिल हो गए तो 8 ज़िलहज को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम अपने बेटे को ज़बाह कर दो। जब सुबह हुई
तो सुबह से दोपहर तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम गौर व फिक्र करते रहे कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। ये ज़िल हज की 8 तारीख थी, इसलिए इस दिन का नाम यौमुत तरविया पड़ गया, फिक्र का दिन। एक और मुनासबत से इसको यौमुत तरविया कहा जाता है। इस तारीख को हुज्जाज किराम पानी लेकर मिना में पहुंचते हैं ताकि अगले दिन अरफा में वो पानी काम आ सके। ऊंटों पर लाद कर वो पानी लाते थे, इसलिए इस दिन को यौमुत तरविया नाम दिया गया। तरविया मतलब पानी भरकर ले जाना होता है अरबी में। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िल हज की रात में ख्वाब देखा, दिन में गौर व फिक्र किया। 9वीं ज़िल हज को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा यही ख्वाब देखा, तो आप पहचान गए कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। इसलिए इस दिन को यौम अरफा कहा जाता है। अरफा का मतलब है पहचानना, और मैदान अरफात को भी अरफा कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसी जगह पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम 303 बरस की जुदाई के बाद मिले थे। मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को इसी जगह पर पहचान लिया था, इसलिए इस जगह को अरफा कहा जाता है। एक और वजह से इस जगह को अरफा कहा जाता है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मनासिक हज सिखाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा अरफ्ता, मतलब क्या तुमने सभी अरकान को पहचान लिया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरफ्तु, मैंने पहचान लिया। इसी जगह पर दोनों खड़े हुए थे, इस मुनासबत से भी इस जगह को अरफा कहा जाता है। तो अरफा का मतलब होता है पहचानना, जानना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। फिर 10 ज़िल हज को फिर से आपने वही ख्वाब देखा, तो आपने ज़बह करने का पुख्ता इरादा कर लिया। 10वीं तारीख को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, इसलिए ज़िल हज की 10 तारीख को यौमुन नहर कहा जाता है। तो मुसलसल 3 दिन तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है। वो अपने बेटे से कहने लगे कि मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूं, बस तुम सोच लो कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के सब्र को जाहिर कर रहा था। सिर्फ 13 बरस के थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर फौरन कह दिया कि ए मेरे वालिद, आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्यों किधर नहीं कहा, सीधे कह दिया कि आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल कीजिए और जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, ये बातें पूछने की नहीं होती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए ले जा रहे थे तो सही के वक्त शैतान सामने आया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे आगे बढ़ गए। फिर जमरे उक़बा के पास पहुंचे तो फिर से शैतान सामने आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको 7 कंकरियां मारी। फिर जमरे वुस्ता के पास आया, वहां भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारी। इसराइली रिवायत के मुताबिक इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरी पेशानी के बाल पकड़ें, मुझे पेशानी के बल लिटाकर मेरे कंधों के दरमियान में बैठ जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे ज़बह करते वक्त मेरा चेहरा देखकर आपको रहम आ जाए और आप मुझे ठीक से ज़बह ना कर सको, इसीलिए आप मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर दें। एक और रिवायत के मुताबिक इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे छुरी ना दिखाएं ताकि मुझे घबराहट ना हो, मेरे जिस्म को बांध दें ताकि मैं हिल ना सकूं। जब मेरी माँ के पास वापस जाएं तो उन्हें मेरी तरफ से सलाम कहें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया और चाकू इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक पर रखकर चला दी। चाकू नहीं चली। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाकू गर्दन पर चलाई तो वह चाकू पलट गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं कटी, क्योंकि उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन अल्लाह के हुक्म से तांबे की हो गई थी। चाकू नहीं चली। एक आवाज आई कि ए इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया, यानी हमने तुमको जो ख्वाब में हुक्म फरमाया उस हुक्म पर आपने अमल करके दिखा दिया। मुड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा तो एक दुम्बा था सफेद रंग का, बड़े बड़े सींगों वाला और साफ आंखों वाला ये दुम्बा था। अल्लाह ताला ने ये दुम्बा जन्नत से भेजा था ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुम्बे को ज़बह करें। अल्लाह ये नहीं चाहता था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह हो जाए। अल्लाह तो बस ये चाहता था कि आने वाली नस्लें देखें कि आजमाइशों पर अल्लाह के नबी किस तरह पूरे उतरते हैं। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश कर दी ज़बह करने की, तब अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया कि मेरे इस्माइल को तकलीफ ना होने देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश के साथ छुरी चलाई, लेकिन फिर भी इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह नहीं हुए। अल्लाह ने फरमाया कि बस जिसका मैं आपको हुक्म दिया था आपने वो पूरा कर दिया, ये ज़िब्ह अज़ीम है, बस इसको ज़बह कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़िब्ह अज़ीम दिया गया। ये जन्नती दुम्बा था, जन्नत में ये 40 साल तक चरता रहा। ये वही दुम्बा था जिसको आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल ने अल्लाह की राह में कुर्बान किया था। इसका नाम जरीर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस दुम्बे को ज़बह कर डाला
उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सुन्नत अभी बाकी रह गई, और अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बाह हो जाते तो ये भी सुन्नत हो जाती और बाप अपने बेटों की कुर्बानी देने लग जाते थे। अल्लाह की तरफ से एक इनाम हुआ कि अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में एक ज़बीहा दे दिया, और अल्लाह ने फरमाया बेशक हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला अता करते हैं। सलाम हो इब्राहिम पर, वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बाह के वक्त 13 बरस के थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता फरमाया जिसका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम है। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम से 13 साल छोटे हैं, जो सारा अलैहिस्सलाम के बतन से हुए। पहले तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। फरिश्तों ने आकर खुशखबरी दी कि तुम्हारे यहाँ एक लड़का होने वाला है। अल्लाह ने उन फरिश्तों को लूत अलैहिस्सलाम के कौम को हलाक करने के लिए भेजा था। वो फरिश्ते इंसान की सूरत में ज़मीन पर उतरे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर पर वो मेहमान बनकर आए। उसके बाद जाकर उन्होंने कौम लूत को अज़ाब दिया। जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर पर मेहमान बनकर आए तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए भुना हुआ बछड़ा खाने के लिए पेश किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह आदत थी कि किसी मेहमान को खाना खिलाए बगैर नहीं भेजते थे। वो उम्दा खानों के साथ मेहमानों की मेहमान नवाजी करते थे। जब फरिश्ते उनके पास इंसान की सूरत में मेहमान बनकर आए तो उनकी भी मेहमान नवाजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। अपनी गायों में से एक बेहतरीन मोटा बछड़ा उनके लिए ज़बाह किया और उसको पत्थर पर भूनकर उनको पेश किया। अब वो खाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे थे, और उनका खाने का इरादा भी नहीं था, क्योंकि वो फरिश्ते थे और फरिश्तों को इंसानों की तरह भूख प्यास नहीं लगती और वो खाते पीते भी नहीं। क्योंकि वो इंसानों की शक्ल में आए थे, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको इंसान समझकर खाना पेश किया। वो लोग खाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफ महसूस करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुमान किया कि कहीं ये हमारे दुश्मन तो नहीं, क्योंकि इस दौर में दुश्मन के घर पर खाना नहीं खाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफ महसूस करते हुए पूछने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक कि हम उसकी कीमत ना दे दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ फिर ठीक है, उसकी कीमत दे दीजिए। उन्होंने पूछा कि क्या कीमत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना और खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यही उसकी कीमत है। फरिश्तों ने आपस में एक दूसरे को देखकर कहा कि फिल वाकई ये इस काबिल है कि अल्लाह इनको अपना खलील बनाए। ये कीमत पता कर लेने के बाद भी उन फरिश्तों ने खाना शुरू नहीं किया। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि खौफ मत कीजिए, हम कोई इंसान नहीं है, हम फरिश्ते हैं। ये 3 फरिश्ते थे, ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये 3 फरिश्ते थे जो कौम लूत की तरफ भेजे गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम फरिश्ते हैं जो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं उनको हलाक करने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया, लेकिन मेहमान खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाना खिला रहे थे, खुद नहीं खा रहे थे। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम को बेसाख्ता हंसी आ गई। कौम लूत की हलाकत की खुशखबरी से सारा अलैहिस्सलाम खुश हो गई। उसी वक्त सारा अलैहिस्सलाम को दूसरी खुशखबरी भी मिली कि इस नाउम्मीदी की उम्र में तुम्हारे यहाँ एक बच्चा होगा। इस तरह उन फरिश्तों ने सारा अलैहिस्सलाम को एक बेटे की बशारत दी जिसका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम है। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के पास याकूब अलैहिस्सलाम होने की भी खुशखबरी उन्होंने दी। ये खुशखबरी सुनकर सारा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब जाहिर किया कि मैं बूढ़ी हूँ और मेरे ये शौहर भी बूढ़े हैं, बुढ़ापे में हमें कैसे औलाद होगी? ये तो सख्त हैरत की बात है। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के मामले में हैरत कैसी? अगरचे कि तुमको आज तक औलाद नहीं हुई, लेकिन इस उम्र में भी तुमको अल्लाह बेटा देगा। अगरचे कि तुम्हारे शौहर की उम्र ढल चुकी है, लेकिन अल्लाह की कुदरत में कोई कमी नहीं है, वो जो चाहे होकर रहता है। ऐ नबी के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हैं, तुम्हें उसकी कुदरत में ताज्जुब नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला तारीफों वाला और बुजुर्गी वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसहाक अलैहिस्सलाम के पास याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह का इनाम हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, एक बेटे को ज़बाह होने से बचा लिया, उसके साथ साथ एक और बेटा इनायत फरमाया। एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि मुझे बता कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है? तो अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम्हें ईमान नहीं है? तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ मुझे ईमान है, लेकिन मेरे दिल को तस्कीन हो जाएगी, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा तेरी कुदरत देखकर। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, 4 परिंदे लो, उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो,
वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। 4 परिंदे लिए, उनको ज़बाह करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके पर उखाड़कर सब एक जगह पर आपने मिला दिया। फिर अलग अलग पहाड़ों पर अलग अलग टुकड़े आपने रख दिए और सब परिंदों के सर अपने हाथ में रख दिए। फिर अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों को बुलाया। जिस परिंदे को आप आवाज देते, उसके बिखरे हुए पर इधर उधर से उड़कर उसके जिस्म पर आकर जुड़ जाते थे। इसी तरह खून खून से मिलता और बाकी अज्जा भी जिस जिस पहाड़ पर होते आपस में मिल जाते और परिंदा दौड़ता हुआ आपके पास आ जाता था। हर एक परिंदे का सर आपके हाथ में था। एक परिंदे का सर आप दूसरे परिंदे को देते तो वो कबूल नहीं करता था। जिस परिंदे को उसी का सर आपने दिया तो ही वो परिंदा अपने सर को कबूल करता था, और जिस परिंदे का सर उसी परिंदे को जुड़ जाता था। एक एक पर भी जिस परिंदे का था उसी को वो जुड़ गया, यहाँ तक कि ये परिंदे एक एक करके जिंदा होकर उड़ गए। अल्लाह की कुदरत का ये नज़ारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब के वफादार थे। उनकी वफादारी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया और कई जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ भी की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। जब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया तो उनके दिल में खुदा का खौफ और खशियत इतनी पैदा हो गई कि उनकी दिल की धड़कनें दूर दूर तक सुनाई देती थी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि अगर आपके घर पर कोई मेहमान नहीं आता तो आप खुद मेहमान ढूंढने निकल जाते ताकि कोई मेहमान मिल जाए और मैं उसकी मेहमान नवाजी करूं। एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे ही किसी मेहमान की तलाश में निकले, लेकिन कोई शख्स ना मिला। वापस घर आए तो घर में एक शख्स खड़ा हुआ मिला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम मेरे घर में कैसे दाखिल हुए? उसने कहा कि मैं अपने रब की इजाज़त से दाखिल हुआ हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम हो कौन? कहा मैं मलकुल मौत हूँ। मेरे रब ने मुझे अपने बंदों में से एक बंदे की तरफ भेजा है ताकि मैं उसे खुशखबरी सुनाऊं कि अल्लाह ने उसे अपना खलील बनाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कौन है, कहाँ रहता है? अगर तुम मुझे उसका पता बता दो तो वो कितनी भी दूर क्यों ना हो मैं उससे ज़रूर मिलूंगा और हमेशा के लिए उसका पड़ोसी बनकर रह जाऊंगा, यहाँ तक कि मौत मेरे और उसके दरमियान जुदाई डाल दे। फरिश्ते ने जवाब दिया, वो बंदा आप ही हैं जिसको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बताओ अल्लाह ने मुझे खलील क्यों बनाया है? फरिश्ते ने कहा, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को माल और दौलत देते हो और उनसे कुछ नहीं मांगते हो। कुरान मजीद में 35 मकामात पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तौसीफ फरमाई। सिर्फ सूरह बकरा में ही 15 मकामात पर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौसीफ फरमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि उनको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि वो खुद मौत की ख्वाहिश ना करें, और ऐसा ही हुआ। एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को खाना खिला रहे थे तो एक बूढ़ा शख्स चलता हुआ आया। आपने उसकी तरफ सवारी भेजी ताकि वो सवार होकर आए। जब वो आ गया तो आपने उसके सामने खाना पेश किया। वो बूढ़ा आदमी जब मुंह में लुकमा डालने के लिए हाथ उठाता तो हाथ कांपने की वजह से खाना कान और नाक में चला जाता था, और अगर बड़ी मुश्किल से मुंह में डाल भी लेता तो जो ही वो लुकमा पेट में जाता तो फौरन शर्मगाह से बाहर निकल जाता था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े की यह हालत देखी तो फरमाया कि तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि ये सब बुढ़ापे की वजह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? जब बूढ़े ने अपनी उम्र बताई तो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र से सिर्फ 2 साल ज्यादा थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी और तुम्हारी उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क है। जब मैं तुम्हारी उम्र को पहुंचूंगा तो मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस हालत में आने से पहले मुझे मौत दे दे। वह बूढ़ा जल्दी खड़ा हुआ। दरअसल वो मौत का फरिश्ता था जो बूढ़े की शक्ल में आया हुआ था। वो मलकुल मौत थे। जल्दी से खड़े होकर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 200 साल थी। दूसरे कौल के मुताबिक 175 साल के थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन 2 बेटों को तो हम जानते ही हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों भी नबी हैं। फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन 2 बेटों के अलावा और भी बेटे हैं। हजरत सारा अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से 400 दीनार में एक ज़मीन खरीदी और उसी ज़मीन में हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई। सारा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंतूरा कनानिया से निकाह फरमाया। उनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 6 लड़के हुए जिनके नाम यकसान, जुमरान, मदियान, यसबक, सरज और बसर है। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और खातून से निकाह फरमाया। उनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 5 लड़के हुए जिनके नाम कैसान, शूरख, उमैन, मूतान और नाफिस है।
मुख्तलिफ रिवायात में इन नामों में सिर्फ हरूफ का फ़र्क है, बाकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इन 2 बेटों के अलावा ये सब भी आपके फर्जंदान हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो उनकी तदफीन अल खलील शहर में सारा अलैहिस्सलाम के करीब में हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इन 2 पैगंबर बेटों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कफ़न दफन का एहतमाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना और इस शहर में रहने वाले जो मोमिनीन हैं उनको फलों से रोज़ी अता फरमा। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमा ली और इस शहर को अमन वाला शहर बना दिया और इसके बाशिंदों को रिस्क से माला माल कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह भी दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इनके पास इन्हीं में से एक ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करता हो और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता हो और उनको शिर्क और कुफ्र से पाक भी करता हो। अल्लाह ने यह भी दुआ कबूल फरमा ली और उनके पास मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, जिनकी उम्मत क़यामत तक अब अपने ही नबी पर दुरूद पढ़ेगी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी उस दुरूद में शामिल करेगी। सलाम हो हज़रत सय्यिदना इब्राहीम पर।